عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمگیر مکتب کے پلیٹ فارم پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ میں مولانا محمد توفیق قمری آج اردو درخشاں کلاس 10 کے لیے حصہ دوم کو لے کر کے آئے ہیں اور اس کا پہلا چیپٹر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی بچے اردو لیے ہوئے ہیں اور وہ اردو میں اچھے نمبر سے ایگزام پاس کرنا چاہتے ہیں اور اردو کی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں، تاکہ اب اس کے بعد ہم جتنے بھی ویڈیو ڈالیں آپ کے لیے اس کو آپ لوگ دیکھ سکیں اور اردو کی اچھی تیاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر گرامر کی تیاری کرنا ہو تو آپ سبھی ہم کو کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم گرامر کی بھی تیاری کرائیں گے۔ آئیے ہم چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ درخشاں کا سب سے پہلا چیپٹر ہے حمد۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، کیونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے چھوٹے ہر شاعر نے ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خالق کائنات، خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے قرار ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہی نعت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے، تو قصیدے میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ کو نظم کیے جاتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم ذرا سا اس کے اوپر تفصیل سے بات کر لیں اور اس کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے حمد کے متعلق پڑھ لیں، تب اس کے بعد حمد کو پڑھیں گے اور حمد کے لکھنے والے کو پڑھیں گے۔ حمد کے لغوی معنی، لغوی کہتے ہیں، لغوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈکشنری والا معنی، وہ معنی جو ڈکشنری میں آتا ہے۔ حمد کے لغوی معنی جو ڈکشنری کے اندر کہا گیا ہے، حمد کا لغوی معنی خدا کی تعریف کرنا ہے۔ حمد کا لغوی معنی خدا کی تعریف کرنا ہے۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، یعنی حمد بھی کا بہت مقبول صنف ہے کہ جس کے اوپر ہر شعراء نے اپنی طبع آزمائی کی ہے، جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ حمد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، بچپن سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کو بیان کرتے ہوئے ہمیں شروع کرنا ہے۔ حمد کے اندر بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے اور اللہ کے صفات کو سامنے رکھا جاتا ہے شعر کے انداز میں، اسی لیے حمد کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعروں نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔
हर छोटे बड़े शायर जिन्होंने भी अपने शेरी सफर को आगाज किया है और शेर बनाने की कोशिश किया है, या शेर पे अपनी किताब लिखी है, या वो कहीं पे शेर कहने गए हैं, तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो सबसे पहले हम्द कहे। और हम्द क्यों कहे? इसलिए कि हम्द के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को बयान किया जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को बयान करना, अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह के नाम से हमें अपने काम का आगाज करना, ये हमारे लिए मुतबर्रक है, बाबरकत है, बाइसे सआदत है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईकान है। हम सबों को इस बात के ऊपर अपने यकीन को जमा के रखना चाहिए कि हम कोई भी काम शुरू करें तो सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करें। और शेरी दुनिया के अंदर जब शुअरा अपने काम को शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले अपने शेर को हम्द के जरिए शुरू करते हैं। शेरी सफर का जब आगाज करते हैं तो वो सबसे पहले हम्द कह लेते हैं ताकि उनके लिए बाबरकत हो जाए, और उनके आगे के जो काम है, आगे जो उनके अशार है, उनके अंदर अल्लाह की जानिब से इमदाद हो। खुदा खालिक कायनात है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि खुदा खालिक कायनात है। इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक कहते हैं, पैदा करने वाले को। कायनात का माना आता है दुनिया, तो खुदा खालिक कायनात है, यानी इस दुनिया को पैदा करने वाला खुदा है। वो कादिर मुतलक है, यानी कादिर कहते हैं ताकतवर को, मुतलक कहते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत का, अल्लाह ताला की ताकत का कोई हद मुतय्यन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत को बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। उसकी जात यगाना और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। उसकी जात यगाना और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। हम सबों ने पढ़ा है और सुना है, हम लोग जानते हैं कि अल्लाह की जात एक है, अकेला है, यकता है। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह न किसी से जना और न अल्लाह से कोई जना गया। अल्लाह की जात यकता है, अकेला है, यगाना है। चुनांचे हम्द के इस अशआर में सिर्फ उसी जाते वाहिद की सिफात को बयान किया जाता है। यहाँ पे क्लियर हो गया, साफ कर दिया कि हम्द के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को बयान किया जाता है, क्योंकि खुदा के सिफात की कोई हद नहीं। अल्लाह की जितनी बड़ाई की जाए, अल्लाह की जितनी बड़ाई की जाए, उसकी कोई भी हद मुतय्यन नहीं है, और इंसान अल्लाह की मुकम्मल बड़ाई नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सारी दुनिया के दरख्तों को तुम कलम बना लो, और दुनिया के दरख्तों के पत्तों को तुम कागज बना लो, और इसी तरीके से सारे समंदरों के पानी को तुम स्याही बना लो। एक अल्लाह के शान को, एक अल्लाह की तारीफ को बयान करना चाहो, उसको लिखो तो तुम नहीं लिख सकते हो। तो चूंकि खुदा के सिफात की कोई हद मुतय्यन नहीं है, बल्कि वो बहरे बेकरां है, यानी आपके बड़ाई का कोई अंदाजा नहीं है। आपकी बड़ाई कोई ये नहीं कह सकता कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को बयान करके उनका हक अदा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हम जितनी भी तारीफ करें अल्लाह की, वो तारीफ हमारी नाकिस और अधूरी होती है। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की तारीफ, जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार तारीफ करे, बेशुमार सिफतों को बयान करे। और दरअसल यही इस सिनफ की खास खूबी है, हम की यही खास खूबी है कि इसके अंदर जो भी अल्लाह की तारीफ करना चाहता है, अशार बनाना चाहता है, वो जितनी चाहे अल्लाह की तारीफ कर सकता है, करे, जितना बड़ा कर चाहे कर सकता है, करे। अल्लाह की जितनी बड़ाई करेगा उतना ही कम है। अल्लाह की मुकम्मल बड़ाई कोई इंसान नहीं कर सकता। तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह की बेशुमार सिफतों को अगर कोई शायर चाहे तो वो बयान करे, जितना चाहे वो बयान कर सकता है, इसका कोई हद मुतय्यन नहीं है। हम्द में खुदा, हम्द में जहां खुदा रब्बुल इज्जत की सिफात का बयान होता है, हम्द में ये बता रहे हैं कि हम्द के अंदर अल्लाह ताला की सिफात का बयान किया जाता है, अल्लाह ताला की सिफात को बयान किया जाता है। तो वही नात में, वही नात में हम सभी लोग जानते हैं नात पढ़ा जाता है। नात वो भी अशार है, लेकिन नात के अंदर क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात गुनगुनाई जाती है। जो अशार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बनाई जाए, तैयार की जाए, वो नात कहलाती है। जिस अशार के अंदर अल्लाह की सिफात को बयान किया जाए वो हम्द है, और जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान किया जाए वो नात है। इस फर्क को हम खूब याद रखें और खूब जाने, ज़हन में बात रखें। हम किसको कहेंगे? हम जिसके हम्द वो अशार है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बयान की जाए, और नात वो अशार है जिसके अंदर नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाए, आपकी सिफात, आपकी जात और आपकी तारुफ को पेश की जाए, उसको नात कहते हैं। इसी तरीके से मनक़बत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन, औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ की जाती है। अब देखें, इस हद को हम समझें। यहाँ पे है कि हम के अंदर क्या होगा, हम में जितनी चाहे हम अल्लाह की तारीफ कर सकते हैं, उसका हद मुतय्यन नहीं है। नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी चाहे हम तारीफ करें, आपके तमाम सिफात को बयान करें, लेकिन जब मनक़बत कही जाएगी तो मनक़बत कहने में बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, खुलफाए राशिदीन, इन सबों की तारीफ करेंगे, लेकिन इनकी तारीफ मंजूम तारीफ होगी। इनकी तारीफ मंजूम तारीफ होगी, यानी इनके शायान शान हमको बात करनी है। इनके जो इनके अंदर खूबियां हैं, उन्हीं खूबियों के मुतालिक बात करनी है। अपने से बढ़ाकर चढ़ा करके कोई बात इसके अंदर नहीं करनी, और ये कहलाता है मनक़बत। ये कहलाता है मनक़बत, जिसके अंदर बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन, सहाबा किराम, औलिया किराम, इन लोगों की तारीफ की जाए, इसको कहते हैं मनक़बत। इसी तरीके से हाँ, शेर की एक किस्म ये भी है कसीदा। कसीदे में किसी भी शख्स की औसाफ हमीदा को बयान किया जाता है। किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा का मतलब क्या, कि उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी अच्छाई को हम बयान कर रहे हैं, ये कसीदा कहलाता है। किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा को अगर हम बयान करें तो ये कसीदा कहलाता है। तो दोस्तों, हमारे सामने ये पहला चैप्टर का ये हम्द था कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई की जाती है, और हम किसको कहते हैं इसके मुतालिक हमने पढ़ा। अब आगे इंशाअल्लाह अज़ीज इसके बाद जो हमारे सामने वीडियो आएगा तो शबनम कमाली साहब ने हम कहा है, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। आप सभी लोग साथ दें, प्यार दें और लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहे वो हमसे जुड़ सके और उनको भी फायदा मिल सके। इसके बाद इंशाअल्लाह आप लोगों की मोहब्बत रही, आप लोगों ने कहा और आप लोगों ने मांग किया, तो इंशाअल्लाह हम ग्रामर पे वीडियो बना करके लाएंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।